Good morning. Good morning, sir. Good morning, all. Have been muted. हाँ muted sir. Good. Yes, children. In today's basic English, we are going to start a new chapter that is named preposition. Okay, children. What is the topic? Our topic is preposition. Preposition. Okay. Let's define the term preposition. It is a combination of two words. It is a combination of two words. Okay, children? Preposition. It is pre. Pre is the first word and position is the second word. Clear? पहले ये बेटा दो शब्दों से बना है, ठीक है? पहला वर्ड है प्री और दूसरा वर्ड है पोजीशन, ठीक है ना? तो प्री का मतलब हो गया बिफोर। प्री का मतलब क्या हो गया बेटा? बिफोर, पहले, ठीक है? और पोजीशन का मतलब हो गया पोजीशन, यानी कि अवस्था, किस हालात में, किस अवस्था में वो है, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेफिनेशन। लेट्स सी द डेफिनेशन चिल्ड्रन। Prepositions are words used before a noun, used before a noun or pronoun, noun or pronoun. Always remember, children, that prepositions are mainly used before a noun or a pronoun to show its relation with one another. Clear, बच्चों? तो डेफिनेशन में ये दिखाया गया है कि नाउन और प्रोनाउन, दो नाउन, दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस के आपस के रिलेशन को, ओके, उनके पोजीशन को दिखाने के लिए, बताने के लिए इंग्लिश में प्रेपोजिशंस के यूजेस होते हैं। क्लियर? Preposition is a very important chapter. In the sense, I mean to say, children, it is very important in written English and for spoken also. बेटा ये प्रीपोजिशन का चैप्टर जो है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत मायने रखता है, ठीक है ना? क्योंकि इससे दोनों ही चीज, आपके लिखने की स्किल और बोलने की जो स्किल है, दोनों में इसकी हर बार जरूरत पड़ती है। ओके, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं बच्चों, prepositions are words used before a noun or a pronoun. ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है उनके रिलेशन को बताने के लिए, उनके पोजीशन को बताने के लिए। नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स। अब हम लोग एग्जांपल्स को एक एक करके गौर करते हैं, ठीक है ना? पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, a parrot is sitting on the tree. A parrot is sitting on the tree. A parrot. What is this? What is this? A parrot. It is a noun. This is a noun. Clear? ये noun है, सबको पता है। दूसरा, ये word क्या है? Tree. ये क्या है बेटा? ये भी noun है ना? ये दो nouns हैं, ठीक है ना? ये वाला पार्ट verb हो गया और ये word जो है on, ये प्रीपोजिशन हो गया। क्यों प्रीपोजिशन इसे कहेंगे? क्योंकि ये पैरट और ट्री दोनों के बीच के रिलेशन को, उसके पोजीशन को बता रहा है कि वो कहां पे है। अ पैरट इज सिटिंग ऑन द ट्री। पैरट ट्री के ऊपर बैठी है, ठीक है? यानी कि ट्री का और पैरट का, दोनों का आपस में रिलेशन, संबंध बना हुआ है। ओके, सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। दूसरे को अगर एग्जांपल को गौर करते हैं बेटा, ठीक है ना? ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। नाउ वी आर इन द ड्राइंग रूम। वी आर इन द ड्राइंग रूम। हियर द वर्ड वी, व्हाट इज दिस? This is a pronoun. Definitely it's a pronoun. We is pronoun. Now we are, what is this? It is verb. In, what is this? This is preposition. Why it is preposition?
because this shows, the word in shows the relationship between drawing room and us. ठीक है, we is the pronoun and drawing room is the noun, and the word in is preposition which shows the relation between this we pronoun and drawing room noun. It is clear, children? Move towards the next example. The frog jumped into the river. The frog jumped into the river. Clear? There are two subjects you will find. The frog. What is this? This is a noun. Okay. And second word, river. This is also a noun. Okay. And the word into. This is preposition. This is preposition. Okay. Which shows the relation between frog and river. Frog and river दोनों के रिलेशन को, संबंध को बता रहा है. कौन सा वर्ड है वो? into. ठीक है बच्चों? So into is preposition. Now, look at the fourth example. She is sitting between Rakhi and Payal. Earlier, I have told you that prepositions are used before nouns or pronouns to show its relations with. She, what is that? She is pronoun. Okay, children. Now, it's sitting, it is verb. Between. This word between is preposition. Is preposition. What? And Rakhi. What is this Rakhi? This is name, so it is noun. Payal. It is name, so it is noun. Okay. So here it is pronoun. She is sitting between Rakhi and Payal. शी और राखी और पायल के बीच के रिलेशन को कौन बता रहा है? पोजीशन को कौन बता रहा है ना? यहाँ पोजीशन शो हो रहा है ना? ठीक है. शी इज सिटिंग बिटवीन राखी एंड पायल. सो हियर द वर्ड बिटवीन इज पोजीशन which shows the position of this pronoun, first pronoun. Come to the fifth example. The old man. What is this, children? This is noun. The old man. This is one first noun. This is the temple. This is also noun. Clear? और इस noun के पहले देखो बेटा कौन सा word used है? Two words. Okay? जो कि ओल्ड मैन और टेम्पल के रिलेशन को और पोजीशन को जो है बता रहा है कि ओल्ड मैन किधर जा रहा है. ठीक है. ओल्ड मैन किधर जा रहा है? तो टेम्पल की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो टेम्पल और ओल्ड मैन दोनों के रिलेशन या पोजीशन को बताने के लिए टू वर्ड्स प्रेपोजिशन का यूज इस सेंटेंस में किया गया है. क्लियर? नाउ द लास्ट एग्जांपल. लेट्स टॉक अबाउट द मैटर. Let's talk about the matter. Us. This is pronoun. Us. This is pronoun. The matter. What is this? This is noun. Okay. और इन दोनों के बीच के रिलेशन को कौन बता रहा है? The word about. It is preposition. On which subject they are talking? They are talking about the matter. Okay. So finally, we have come to the conclusion that prepositions are a combination of two words, pre plus position. Pre, it means before, and position, it means position or relation. Clear? So, as definition, we can say that prepositions are words used before nouns or pronouns to show its relation with or position in a sentence. Clear, children? इन सभी थ्रू द एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा कि प्रेपोजिशंस कौन कौन से यूज्ड हैं और प्रेपोजिशन क्या है. ठीक है ना? ये नाउन्स के पहले आ रहा है ना बेटा? देखो गौर करो.
ये सेकंड वाला जो नाउन है इसके पहले आ रहा है, ये यहाँ ड्राइंग रूम के पहले है, ठीक है ना। फिर इनटू किसके पहले है, ये नाउन के पहले है। फिर राखी नाउन के पहले बिटवीन है। फिर टूवर्ड्स जो है वो टेम्पल के पहले है, ठीक है ना। मैटर इज सब्जेक्ट और नाउन, उसके पहले अबाउट है, ठीक है ना। टू शो द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, ये दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के बीच के रिलेशन को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। नाउ टाइप्स। Now we will discuss about types. शिवराज बाबू वीडियो ऑन कीजिए, समर शैतान ऑन करो बाबू, प्रिंस। और जो बच्चा इधर उधर करेगा बाबू, आप लोग कैमरे की निगरानी में हो। शिवराज ऑन करो जी, निधि बोली ऑन कीजिए।
Now look here, children. लिखने दीजिए सर कुछ। Okay, अभी okay. जल्दी लिखे बाबू, जिसको नहीं दिख रहा फोटो खींच के ग्रुप में भेज देते हैं। लिखिए, जल्दी लिखिए, बोला। आकांक्षा वीडियो ऑन कीजिए, रबे वीडियो ऑन करो, सिमरन बाबू वीडियो ऑन कीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? Now we are discussing about types, बच्चों, ठीक है ना? Prepositions are basically are of two types, ठीक है ना? ये दो तरह का है मेनली, खास करके, ठीक है? First one is simple prepositions. Simple prepositions, ठीक है ना? They are simply used. Simple prepositions are simply used. Okay ना? Suppose in, on, at, between, to, towards. These all are called simple prepositions. Clear बच्चों? Second type, that is
phrasal prepositions. Second type, that is phrasal prepositions, okay, that are used with a verb. That are phrasal prepositions are always used with a verb. ठीक है ना? phrasal prepositions में preposition जो है वो verb के बाद आता है, आप ध्यान रखो. सपोज ran after. ran after का मतलब क्या हो गया? भाग खड़ा होना, भाग जाना. दिस इज अ फ्रेज. fond of. fond of, it means शौकीन होना. fond is first word, of is used after this, okay. addicted, this is an adjective, okay na. addicted to. addicted to. getting f. A preposition is used after a verb, an adjective, or an adverb. Such prepositions are called phrasal prepositions. Clear है बच्चों? अब हम लोग बेटा यूजेस की चर्चा करेंगे. हम लोगों ने डेफिनेशन को देख लिया, टाइप्स को देख लिया. अब हम लोग बेटा यूजेस की बात करेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा प्रेपोजिशन जो है वो कहाँ यूज होगा. और अभी की क्लास में बेसिक इंग्लिश में हम लोग सिंपल प्रेपोजिशंस के यूजेस को देखेंगे, सीखेंगे. ओके, लेट्स गेट रेडी. फर्स्ट वन, दैट इज आई हैव रिटन इन. इन का मतलब होता है हिंदी में में. में का मतलब हो गया इनसाइड. में का मतलब क्या हो गया? इनसाइड, अंदर में. ठीक है ना? इनसाइड. इनसाइड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और अ ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? एग्जांपल्स देखते हैं बेटा. इन इज यूज्ड इनसाइड. इनसाइड के लिए जब हम अंदर होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है ना. या फिर टू अ पोजीशन इनसाइड, या फिर अंदर में किसी अवस्था में होते हैं. ठीक है ना? इन अ पर्टिकुलर एरिया. इन अ पर्टिकुलर एरिया. He is in the hospital. He is in the hospital. Hospital, what is that? That is a particular area. Okay ना? तो वहां इन जो है वो क्या बताता है? Inside a position, inside a particular area. Clear है? अब बेटा एग्जांपल्स को देखेंगे. I am sitting in my room. I am sitting in my room. मैंने आपको बताया था, don't forget. ये preposition जो है दो noun या फिर pronouns के, noun या pronoun या फिर दो pronoun, दो nouns के बीच के relation को बताते हैं. I am sitting in my room. Inside room. कमरे के अंदर, कमरे के अंदर हूं. इनसाइड रूम. ओके, तो वैसे हालत में हम लोग क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे. क्लियर है? मिल्क इज इन द जग. मिल्क इज इन द जग. ठीक है ना? तो इन यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन है. ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मिल्क इन एन ऑब्जेक्ट. जग क्या है? दैट इज एन ऑब्जेक्ट. तो जग और मिल्क के पोजीशन को बता रहा है इन. ठीक है ना? और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, इन जो है स्थिरता को वो बताता है. ठीक है ना? कंप्लीट रेस्ट को बताता है, नॉट मूवमेंट. ये रेस्ट को बताता है. मदर इज इन द किचन. मदर इज इन द किचन. मदर नाउन है, किचन नाउन है, और मदर नाउन के बीच के रिलेशन को कौन बता रहा है? इन. दैट मीन्स इनसाइड किचन. इनसाइड किचन. किचन क्या है? दैट इज अ पर्टिकुलर एरिया, है ना? और वहां के रिलेशन को कौन सा वर्ड बता रहा है? इन. सो इन इज प्रीपोजिशन हियर. ही इज इन हिज ऑफिस. इन. ही इज इन हिज ऑफिस. प्रोनाउन, नाउन, दोनों के रिलेशन को बता रहा है कौन? द वर्ड इन. दैट ही इज इनसाइड द ऑफिस. ऑफिस के अंदर है वो और स्थिर है. वी लिव इन इंडिया. वी लिव इन इंडिया. एक पर्टिकुलर एरिया है.
It is what is India? India is a particular area of land. Okay, so in is used and we live inside India. हम लोग इंडिया के अंदर रहते हैं. So in is used. Clear? Now next. ये द्विवेदी लिखिए, बोली क्या कर रही हो, झुक रही हो जी द्विवेदी, वही क्लास कर रही थी। This was the first use of in. वो जो मैंने बताया वो in का पहला यूज था. Second use of in I am writing here. लवन्या वीडियो ऑन करो बाबू, ये समर्थ बाबू वीडियो ऑन कीजिए। वासुधा ऑन करो, बोली। आपका HD क्वालिटी कर देते हैं, जिसको नहीं दिख रहा। आराम से लिखे बाबू, और उसके बाद आराम से समझिए। लिखते चलिए आप लोग, भोला सारा बच्चा लिखते चलेगा। ओमकार वीडियो ऑन करो बाबू। अभिनव सिंह कहा गया मेरा। हे प्रिंस बाबू ऑन कीजिए जी। ऋषभ बाबू लिखते चलो, भोला। ऐसी बात ऑन करो, भोला। प्रीसा उधर क्या देख रही, भोली उधर ही क्लास चल रहा है प्रीसा। सारे बच्चे लिखते चलिए, फिर सर समझाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा तो समझाएंगे। जे का कैपिटल होगा, करवाते हैं। कौन सा कैपिटल? हाँ बाबू, ये ग्रुप पे हम इंग्लिश जैसे पाएं तो खुद पढ़ा, सारे सब्जेक्ट हम नहीं ना पढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश दूसरा सर पढ़ाते, तो वो अभी प्रीपोजिशन टॉपिक चल रहा। ये नया नहीं है, इंग्लिश हमारे यहाँ है ना, तो संडे को इंग्लिश की क्लास होती, बाकी से दिन खुद पढ़ा। सारे बच्चे ऐसा नहीं है, देखिए ना सारे बच्चे। ठीक, अटेंड कर। प्रिंस बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। जून में कैपिटल जो होगा सर, मंथ का पहला मिनट, ऑफिस इन जून फर्स्ट बोलो। तो कैपिटल लिखो। कैपिटल कर दीजिए, कैपिटल। तमरीद बाबू वीडियो ऑन कीजिए। बच्चा सब है छोटा, कैपिटल
तो होता क्या है ना, लिखते लिखते हाँ लिखते हैं। होता है, कोई दिक्कत नहीं। रुपेश बाबू वीडियो ऑन कीजिए बाबू, लिखिए रुपेश। आपका बाबू रुपेश प्रीपोजिशन टॉपिक चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे, देख लीजिएगा तो समझ में आने लगेगा। यथर्थ तिवारी वीडियो ऑन करो जी। लिखिए बोला। कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 मिनट है, 10 मिनट लगेगा, अगला बार हो जाएगा, होमवर्क दे दीजिएगा। और बेसिक सारे बच्चे जल्दी से लिखो बाबू। ऋषभ, प्रिंस, दुर्गा, समर्थ, रुपेश कहाँ रह गया जी? ए वसुधा वीडियो ऑन कीजिए बाबू, वसुधा वीडियो ऑन कीजिए। कार्तिक मोबाइल घुमाइए बाबू, कार्तिक बोलो बोलो कार्तिक। क्लास बच्चे बाबू वो 7-8 वाले आते हैं, उसमें ये चल रहा है, स्पीच चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है इसके जस्ट बाद।
चलिए हो गया, बोला समझाया जाए बाबू। जल्दी लिखिए जी। जल्दी लिखो स्वप्न श्री। लबनिया वीडियो ऑन करो बाबू। लिखो वसुधा बोले। कार्तिक स्वप्निल श्री। चलो बाबू, आदित्य स्वरूप कहाँ रह गया जी? हो गया जी। चलो ठीक है, बोला सर अब समझाएंगे। जो नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज दिया गया, समझा दीजिए सर इसे। ठीक है, समझा दीजिए। Yes, children. Now we are going to understand the second use of in. अब हम लोग बेटा in का पहला यूज तो हम लोगों ने देखा जो इनसाइड को शो करता है। दूसरा यूज ऑफ in बेटा हमने बताया आपको ड्यूरिंग और आफ्टर अ पीरियड। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, एक टाइम लिमिटेशन, ठीक है, कि इस दरमियान, इस दौरान आपको ये काम कर लेना है, ठीक है ना। सपोज, और आफ्टर अ पीरियड, इस पीरियड के बाद, ठीक है ना, ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल बी बैक इन ऑफिस इन जून। कब आऊंगा? इन जून। इट्स अ टाइम पीरियड, यहाँ टाइम पीरियड बताया जा रहा है इन जून। किस महीने में? तो जून में, ठीक है ना, कभी भी। दैट इज टाइम पीरियड। सेकंड एग्जांपल, यू आर गोइंग टू विजिट योर फ्रेंड इन अ वीक। इन अ वीक इट मीन्स एक सप्ताह में। एक सप्ताह में कभी भी, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को, या फिर सैटरडे को, ओके, किसी भी दिन। इन अ वीक, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ period of time, here in shows. Now come to the third example. Cauliflowers are grown in winter. Cauliflowers are grown in winter. याद रखना, ठीक है ना। तो ये इन जो है, ये बता रहा है टाइम ड्यूरेशन, है ना। टाइम को बता रहा है कि कब जो है वो कॉलीफ्लावर्स उगते हैं, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है इन, कब? तो विंटर में। दे हैव टू पे बैक द डेब्ट इन अ मंथ। इन अ मंथ, इन अ मंथ। उनको कर्ज, उनको कर्ज जो है एक महीने में चुकानी है। कब चुकानी है? एक महीने में, ठीक है ना। ड्यूरिंग को शो कर रहा है बेटा, ठीक है। My birthday is in January. January, it is a time period. January, it is a time period. In, it shows during January. Clear hai? Mary will come to India in December. Same period of time. December. This is period of time. Okay? In. It means here it shows during January, during December. Now, next example, we get mangoes in summer. We get mangoes in summer. ठीक है ना। तो in कब क्या शो कर रहा है? A period of time. और period of time क्या है? Summer season. Clear है बच्चों? Komal is to be honored in a fortnight. In a fortnight. Fortnight. This is a time period. Okay. So in is used in the through these examples. इन examples के जरिए बेटा हम लोगों ने ये सीखा कि इन का यूज जो है वो ड्यूरिंग और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है। ओके, नाउ as example, as homework children, you note down. समर्थ आज बाबू ये क्या कब कर रहे हो जी? ये समर्थ, क्लास चल रहा है कि मजाक हो रहा है जी?
उठा बैठी करवा देंगे, बोला जो क्लास में सिंसियर नहीं रहेगा उठा बैठी करवा देंगे। सब बच्चा को यहाँ दिखाई दे रहा है। कहाँ गया तो उठ के शिवांश बाबू? क्लास में उठ के कहाँ जाते हो शिवांश? कहाँ नहीं सर। HW write down. Right. वीडियो ऑन कीजिए बाबू, एक अच्छा सिमरन बोलिए ऑन कीजिए। Sentences using in. आज की क्लास में बेटा मैंने आपको इनके 2 यूजेस पढ़ाए, ठीक है ना। लेट्स रिव्यू दिस क्लास, ओके। एक बार हम लोग क्लास को रिव्यू कर लेते हैं बेटा। होमवर्क में आपको 15 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं यूजिंग इन प्रेपोजिशन का यूज करते हुए 2 रूल्स जो मैंने बताए हैं उसके अनुसार आप मुझे 15 सेंटेंसेस सेंड करेंगे, ओके। वेल, नोट डाउन। देखो बाबू, आप लोग बाबू जो करते हो जी इधर सब दिखते रहता है, समझे बोला? तो कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं करेगा, सारे बच्चे का इधर कैमरा में दिखते रहता है। शैतान शिवांश अभी उठ के बाहर गया था। उसके बाद बाबू कहाँ गया? समर्थ बाबू नहीं था, गप कर रहा था, ठीक है। तो क्लास को सिंसियर होके करना बाबू, मजाक नहीं समझना है। सारे बच्चे का यहाँ पे बाबू टैबलेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सारे का इमेज आते रहता है। कुछ इधर उधर कीजिएगा बाबू आके ढूंढ देंगे। इसे क्लास को सब मजाक समझ लेता है। होमवर्क बना के बाबू सर के नंबर पे भेज दीजिएगा, सर का नंबर ग्रुप में सेंड कर देंगे। सर इसके पहले वाला कहाँ पे है? सर इससे पहले वाला